Welcome to my channel Maths with Magic. Today we will discuss the rest of the question of the exercise 15. Okay, see, fill in the blanks. तो आप कर सकते हो क्योंकि I have already explained you this whatever here given and it's all this fill in the blanks depends on this one. I have already explained in my previous video. Okay, फिर आपका आता है this one. ये भी आप कर सकते हैं. And this proved that the sum of all angle of a quadrilateral is equal to 360. This one I have explained to you. Okay, so from question number 4 we will discuss. See, question number 4, what the question number 4 is saying. Exercise 15. Okay, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है the three angles of the quadrilateral are 76, 54, 108 degree and find the measure of the fourth angle. Now we have to find the measure of the fourth angle. Suppose this is the quadrilateral, first angle is 76. Okay, एक 76 है, दूसरा है 54 डिग्री, तीसरा है मान लो 108 डिग्री. तो चौथा क्या होगा ये निकालना है. मतलब कहीं पे भी कोई भी एंगल पुट कर सकते हो लेकिन एक जो बच गया उसे निकालना है. तो नाउ टेल मी, चारों एंगल जोड़ करके कितना डिग्री होता है? 360 होता है. वी नो दिस, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360. ये तो पता है. तो बताओ कि हम लोग चौथा एंगल निकाल सकते हैं या नहीं. तो कैसे लिखेंगे हम लोग? सी, वी विल राइट लेट द, जो नहीं पता उसे क्या मान लेंगे, लेट द मेजर ऑफ, ओके, मेजर ऑफ फोर्थ एंगल बी एक्स. क्या मान लिया? चौथा एंगल क्या मान लिया? एक्स मान लिया. ओके, एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360. ये तो पता है. देन वी विल राइट, वी नो दैट the sum of all angles of the quadrilateral is 360. We know this one कि sum of all angle of a quadrilateral क्या होता है? 360. And we have already proved this one. Okay, so we will write 76 degree plus 54 degree plus 108 degree plus x is equal to 360. Okay, now we will add all these three angles. Okay, here we can do the rough working. 76 plus 54 plus 108. See, 6 plus 4 10 plus 8 18, in hand carry 1 1 plus 7 8 8 plus 5 13 का 3, in hand carry 1 1 1 and 1 2. Okay, so we will write 238 plus x is equal to 360. Done. Now what we will do, x यही रहेगा and this 238 will go that side. Okay, तो माइनस कर लेंगे 238. Okay, then the value of x will be, चलो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 360 में से 238 माइनस कर लेंगे. वी विल गेट 2 हियर एंड देन यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया तो अगेन 2, और यहाँ पे क्या बचा? 3 है, 3 में से 2 गया 1. देन द फोर्थ एंगल विल बी 122 डिग्री. ओके, 122 डिग्री. हेंस वी कैन राइट, हेंस द मेजर ऑफ fourth angle is 122 degree. Okay, now come to the fifth one. See what the question number 5 is saying. You can see it's written that the angles of a quadrilateral are in the ratio 2:5:7:9. मतलब कह रहा है इस बार चारों एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो क्या कह रहा है कि चारों एंगल जो रेशियो में दिया है, एंड रेशियो इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है. तो चारों का लेकिन रेशियो दिया है. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. तो हमें वी हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ दैट एंगल्स. ओके, सो हाउ वी विल सॉल्व? सी, वी विल राइट लेट द measure of all angles of quadrilateral be
ओके ये जो 3:5:7:9 है, तो वी विल राइट लेट द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी फर्स्ट वन 3x, देन अनदर वन 5x, देन 7x एंड देन 9x. हम लोग ऐसे मान सकते हैं. ओके अगेन नाउ टेल मी, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360. नाउ वी विल राइट वी नो दैट द sum of all angles of quadrilateral is 360. okay now तो ये बताओ ये वाला क्या क्या माने हम लोग, ये एक माने, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये. तो वी विल राइट 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 360 मान सकते. पहला एंगल ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये इज इक्वल टू 360. नाउ 3x प्लस 5x 8x, 8x प्लस 7x 15x, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 it will be 24x. okay now 24x is equal to 360. now what will be the value of x? X is equal to 360 divided by 24. now these two are divisible by the table of 12, so it will be in 2 times and this one in 3 and 0. okay now this one by this in 15 times. okay so we will get 15 degree. what is the value of x? It's 15. now what was the first angle here? so the measures of angles of the given quadrilateral are, what was the first one? 3x. so we can write 3 into what is the value of x? 15. okay पहला एक हुआ, दूसरा 5x 5 into 15. okay and what is the third one is 7x, so 7 into 15. okay and the fourth one is 9x, 9 into 15. okay see, so 15 into 3 it will be 40 degree. now 15 into 5 it will be 75 degree. now 17 into 15 into 7 9 5 no see कैसे कर सकते हो अगर याद नहीं है तो वो इट विल री 5 into 7 into 5 35 इन हैंड करी 3 7 1 7 plus 3 10. okay sorry 105 degree and 15 into 9 it will be 135 degree. and if we will add all these angles we will get sum will be 360. okay now come to the sixth one. see now question number 6 is a quadrilateral has 3 acute angle. okay quadrilateral का क्या है, एक quadrilateral में 3 एंगल जो है acute एंगल है. okay and each measuring 75 degree. और ईच मेजर मतलब जो तीनों एंगल है वो 75 75 एंड 75 है. तो फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल. नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल. सपोज दिस इज द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो एक 75, दूसरा भी 75 और तीसरा भी 75 डिग्री. ओके तो चौथा क्या होगा? वी हैव टू फाइंड दिस एंगल. तो देखो चौथा क्या मान लेंगे, लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स. चौथा एंगल क्या मान लिया? एक्स मान लिया. ओके नाउ वी नो डैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ quadrilateral is 360 degree. okay we know this one. तो now tell me तीन जो है 75 है. तो आप क्या कर सकते हो, आइदर यू कैन राइट लाइक दिस 75 + 75 + 75 + x इज इक्वल टू 360 ऐसे लिखो, या 375 है ना तो डायरेक्टली क्या कर दो 3 × 75 + x इज इक्वल टू 360. ओके ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. गेटिंग मी व्हाट आई सेड? या तो आप 75 + x करो, 3 एंगल 75 है और चौथा x है तो इज इक्वल टू 360, या 375 है तो 3 × 75 + x, चौथा क्या माने थे x. ठीक है इज इक्वल टू, और ये तीन क्यों, ये और एंगल क्या गया, ये 3 जो लिखा तो 3 मतलब क्या 1 2 3 वही आएगा ना. तो देखो आपकी मर्जी, हम फर्स्ट वाले तरीके से ही कर देते हैं. 75 यहाँ पे ये +75 + 75
प्लस चौथा क्या माना, x इज इक्वल टू 360. ओके, नाउ 75 plus 75 it will be 150. 150 plus 75 it will be 222. It will be 225. Okay, not 2, it will be 225 plus x is equal to 360. Now what the value of x will be, this will go that side. 360 minus 225 it will be 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 5 में से 2 गया 3, और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1. 135 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 135 डिग्री. तो हेंस वी कैन राइट, हेंस द वैल्यू ऑफ फोर्थ एंगल is 135 degree. Got it? Now come to the next one. Now it's question number 7. 3 angles of the quadrilateral are equal. 3 एंगल जो है, let's draw the quadrilateral. 3 एंगल जो है वो क्या है, बराबर है. and the measure of the fourth angle is 120 डिग्री. ओके, 3 बराबर है और चौथा एंगल इस बार दिया है 120 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स. तो जो तीनों बराबर एंगल है उसे फाइंड करना. तो देखो, मान लो एक ये x है, 3 बराबर है तो ये x मानेंगे, तो ये भी क्या होगा, x होगा, ये भी क्या होगा, x होगा, और चौथा क्या दिया है 120. तो अब बताओ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 360 होगा. तो इस तरीके से बना सकते हैं, है ना. तो वी विल राइट, देखो वी कैन राइट द लेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स बी x मान लिया. फिर वी नो डैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360. नाउ देखो x 3x मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x होगा, प्लस चौथा क्या है 120 इज इक्वल टू 360. डन. ये 3x क्यों, 1x प्लस 2x प्लस 3x हो गया, तो ये 3x. ठीक है. नाउ ये जो है उधर जाएगा, 3x यहीं रहेगा पहले. 360 माइनस 120 इट विल बी 240. इट विल बी 240. 3x इज इक्वल टू 240. नाउ x इज इक्वल टू यही रहेगा x, और 243 कहाँ जाएगा, एज अ डिवाइज़र हो जाएगा. तो ये यहाँ इससे 80 टाइम में आ गया. तो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 80 डिग्री. ओके, डन. नाउ अब क्या करना है हमें, हाँ, तो कहने का सेंस क्या है कि ये भी 80, ये भी 80 और ये भी क्या है 80. 80 80 80 प्लस 120 हो जाएगा 360. तो कह सकते हैं हेंस द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल is 80 degree. Okay, now come to the next question, that is question number 8. See question number 8. 2 angles of the quadrilateral are 85 and 75. इस बार क्या है, 2 एंगल क्वाड्रिलेटरल का दिया है. चलो ठीक है, 2 एंगल दिया है, एक दिया है 85 और दूसरा दिया है 75. डन. एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल. और जो बच गया 2 एंगल दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल. तो अगर इसे x मानेंगे तो इसे भी क्या मानेंगे, x मानेंगे. नाउ फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल. नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ दिस x. इफ वी विल फाइंड द मेजर ऑफ x मतलब ये x इसका जितना वैल्यू आएगा इसका भी उतना ही होगा. ठीक है. अगेन सिमिलरली व्हाट वी विल डू, वी विल राइट लेट द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल्स बी x. क्या मान लेंगे, x मान लेंगे. डन. एंड वी नो डैट सेम पॉइंट जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, द sum of all angles of quadrilateral is 360. Done. We know this one. Now see what we will write. 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री, फिर तीसरा x और चौथा भी क्या, x इज इक्वल टू 360. डन. नाउ 5 प्लस 5 10, इन हैंड कैरी 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 8 16. तो 160 डिग्री प्लस x कितना x 2x, या डायरेक्टली इसके जगह पे आप 2x भी लिख सकते थे.
360. ओके, नाउ ये 180 इधर जाएगा, 2x यही रहेगा, सॉरी 360 माइनस 160. नाउ 2x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस होगा, इट विल बी 200. ओके, एंड नाउ द x यही रहेगा, 2 क्या होगा, इधर जाएगा, तो 200 से 2 डिवाइड होगा, इट विल बी 100. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 100 एंड x क्या है? x इज़ द इक्वल एंगल. तो कह सकते हैं हेंस ईच इक्वल angle is 100 degree. Got it? Means this one is 100 and this one also 100, and if we will add all these 4 angles, we will get the sum will be 360. Okay, now come to the question number 9. देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर, दिस इज द फिगर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट अ पॉइंट पी. देखो एंगल ए, देखो कब हम एक चीज़ आपको बता दें, जैसे ये फिगर था आपका ऐसे, ठीक है, पी ए, दिस इज ए, दिस इज बी. बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए यानी एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, एंगल को जो बीच से काटता है. तो कहने का सेंस बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जो भी एंगल है, ये मान लो ये एंगल अगर 60 है तो ये 30 और 30 में 2 पार्ट में बटेगा, तो 30. ये x है मान लो, तो 1/x का 2 और ये x/2 होगा, ठीक है ना, ऐसे होता है. अगर ये पूरा एंगल a है तो एंगल a का आधा इधर और एंगल a का आधा इधर, ये होता है इसका मतलब, ठीक है ना. तो मतलब हाफ पार्ट में बाइसेक्टर बांट देता है. ओके, नाउ एंगल C इज गिवन 100 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB. मीन्स व्हाट? वी हैव टू फाइंड दिस वन, APB, ये फाइंड करना है. गॉट इट? नाउ टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से बताओ, ये तो जानते हैं, वी नो डैट द सम ऑफ ऑल angles of quadrilateral is 360. we know this one. okay, now tell me कि एक दिया है 100 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 होगा. ठीक है, इसे हमें कुछ नहीं मानना, बस इतना होगा. चलिए, ये 160 जो आएगा उधर जाके माइनस हो सकता है, होगा ना. तो एंगल A और यहाँ क्या रह जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 माइनस दिस 160. इट विल बी एंगल A प्लस एंगल B क्या आएगा, 200. इज दिस क्लियर? चलो, अब हम आपको क्या बोले कि जो बाइसेक्टर है एंगल A का, एंगल A को ये लाइन AP काट रहा है एंगल A को, तो मतलब क्या है कि हाफ पार्ट में बांट रहा है, और ये B को काट रहा है PB, तो ये आधा और ये आधा पार्ट में बांट रहा है. लेकिन हमको तो पता है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि तो एंगल A का आधा, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को निकालना ये वाला, तो ये वाला निकालने के लिए ये ट्राइंगल की बात करेंगे ना फिर, इसलिए क्या करेंगे, मतलब इस ट्राइंगल की ये जो P है, ये वाला, ये ट्राइंगल में आ रहा है, ये एंगल P ये वाला, तो हम लोग ये ट्राइंगल लेंगे. इसलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, वी विल राइट कि आधा इसका और आधा इसका, तो 1/2, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल A प्लस 1/2 बाइसेक्टर ऑफ B. ठीक है, तो 200 को भी 2 पार्ट में बांटेंगे, इट विल बी 100. ओके, तो क्या मिला, 100 मिला ये. ठीक है, ये क्या मिल गया हम लोगों को, 100 मिला. अब देखो, ये बताओ इसके लिए, ठीक है, इस वाले के लिए हम इस एंगल के लिए हाफ एंगल A, अब ट्राइंगल की बात करनी क्योंकि हमें ये निकालना है, तो ठीक है, तो इसके लिए आधा और इसके लिए आधा के लिए इसका नाम क्या लिख सकते हैं, इस अंदर वाले के लिए एंगल PAB या BAP लिख सकते हैं. तो एंगल लिख सकते हैं इस वाले एंगल A के लिए, एंगल लिखेंगे हम लोग BAP. क्या लिखेंगे, BAP प्लस हाफ एंगल B के लिए आधा एंगल B, यानी आधा एंगल B इस साइड में आए ना, इस ट्राइंगल में, क्या लिखें, BABP लिख सकते हैं. एंगल ABP इज इक्वल टू
100 डिग्री, इसे क्या कर लो 1 मान लो. गॉट इट. नाउ व्हाट वी विल डू, वी कैन सी दिस ट्राइंगल ABP. ओके, नाउ वी विल राइट इन ट्राइंगल ABP. ठीक है, इन ट्राइंगल ABP एंगल, अब देखो ध्यान से, एंगल कौन कौन, ये ट्राइंगल की बात की जा रही है. अब ध्यान से देखना किस ट्राइंगल की बात करी जा रही है, ये ABP. तो देखो इस एंगल का नाम हम लोगों ने, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने किया था ना, इस एंगल का नाम क्या लिखा है, ये लिख सकते हैं दिस वन. और इस एंगल का नाम, ये जो यहाँ पे फिगर बनाया था, इस एंगल का नाम ये लिख सकते हैं. और प्लस एंगल तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, वी विल राइट एंगल BAP प्लस एंगल ABP प्लस एंगल व्हाट इज दैट APB. ये तीनों जोड़ के कितना डिग्री 360, क्योंकि ये ट्राइंगल है ना. ठीक है, तो और इन दोनों का सम क्या दिया है 100 दिया है. क्या दिया है 100. तो इसके जगह पे हम 100 पुट कर सकते हैं प्लस 100 डिग्री प्लस APB इज इक्वल टू 180. ओके, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1. ठीक है, 1 का वैल्यू पुट करने पे आया मेरा ये. नाउ दिस एंगल APB यही रहेगा. ओके, एंड ये जो है आपका 100 इधर चला जाएगा, इट विल बी 80 डिग्री. तो एंगल APB क्या आ गया 80 डिग्री. यही ना आपसे पूछ रहा था, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB. हेंस वी कैन राइट, हेंस द मेजर ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 80. देखो करना क्या था आपको एक बार ध्यान से समझना. कह रहा था कि 4 एंगल है, ठीक है, लेकिन हमें इन सब का नहीं ढूंढना है, एंगल A और एंगल B का वैल्यू नहीं इस बार ढूंढना था. हमें इसके अंदर एक ट्राइंगल भी बना है और उस ट्राइंगल के इस पॉइंट का वैल्यू ढूंढना था. ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले वी नो डैट यहाँ तक जो करते आए थे वो तो हम लोगों ने कर लिया. A और B का वैल्यू आ गया 200. अब देखो पूरे B का वैल्यू 200 आया. गॉट इट. तो देखो अगर हम बाइसेक्टर है तो आधा आधा करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 100 होगा. अब इस आधा एंगल A का और इस आधा एंगल B का हमको ट्राइंगल में यूज़ करना. इस ट्राइंगल में, क्योंकि एंगल A का आधा क्या है इस ट्राइंगल में आ गया और एंगल B का आधा क्या हो गया इस ट्राइंगल में आ गया. तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम इसका नाम लिख सकते हैं. A के हाफ एंगल A के लिए, आधा एंगल A के लिए BAP और आधा एंगल B के लिए ABP इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं. अब इन ट्राइंगल ABP, अब ये ट्राइंगल लिया, उसमें ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180. अब पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, थैंक यू. एंड अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक्स. एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू अगेन.